Hello students, how are you all? I hope you all are fine and good and you all are learning and enjoying from these videos. We are learning 6th unit of science, which is life processes. Myself Rajesh, and today we are going to start respiratory system of humans. In our previous session we have discussed the digestive system of humans. In a digestion system we have discussed the whole processes, different organs involved in a digestion. So today we are going to discuss what is the importance of respiratory system and how respiratory system is connected with the digestion system. In a digestion system we are getting different components of food as a digested from the small intestine. हमको अलग अलग जो फूड के कंपोनेंट्स है वो डाइजेस्ट होके मिलते हैं. स्मॉल इंटेस्टाइन इज द लास्ट ऑर्गन from where the digested food is absorbed. This process of absorption is called assimilation. Assimilate होके जो भी फूड कंपोनेंट्स है वो अलग अलग सेल तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट होती है. लेकिन वन मोर थिंग, पहुंच तो जाती है, हमारे बॉडी को कोई भी एफर्ट करना हो, कुछ भी करना हो तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है. लेकिन वो जो पहुंचता है वो तो डाइजेस्टेड फूड कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि ग्लिसरॉल है, ग्लूकोज है, या फिर विटामिन्स है, मिनरल्स है, जो भी है, अमीनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स है. बट दिस डाइजेस्टेड फूड कंपोनेंट्स आर नॉट प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एनर्जी. ये जो डाइजेस्टेड फूड कंपोनेंट है ये डायरेक्ट एनर्जी को प्रोवाइड नहीं करते हैं. डाइजेशन के बाद सिर्फ हमें मिलता है क्या? अगर मैं आपको बात करूं, इफ़ आई एम टॉकिंग ओनली अबाउट द ग्लूकोज, अगर मैं सिर्फ एनर्जी की बात करूं तो मैं सिर्फ अभी ग्लूकोज की बात ही कर रहा हूं. तो यहाँ पर जो रेस्पिरेशन सिस्टम है विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, रेस्पिरेशन सिस्टम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट इन कन्वर्टिंग द डाइजेस्टेड फूड इनटू एनर्जी. तो जो डाइजेस्टेड फूड है उसमें से एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए रेस्पिरेशन सिस्टम बहुत ही इम्पोर्टेंट है. सो हाउ इट वर्क्स, व्हाट इज़ द रोल ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, नॉट ओनली इन ह्यूमंस, इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें रेस्पिरेशन का क्या रोल है. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट पार्ट. वी कैन डिवाइड दिस पार्ट इनटू टू पार्ट. First of all, I am going to explain the chemical things about these chemical reactions about the respiration system, and after the mechanism of respiration, कि हम कैसे ब्रीदिंग लेते हैं, इनहेलिंग करते हैं या एक्सहेलिंग करते हैं, I will tell you on this in detail. So today I am going to discuss with you guys. Today we are going to discuss about the respiration. What is the importance of respiration and how it takes place in our body. So earlier I told you guys, we have discussed nutrition in organisms in the last section. The food material taken during the process of nutrition is used in a cells to provide energy for various life processes. Diverse organisms do this in a different ways. Some use oxygen to break down glucose completely into carbon dioxide and water. Some use other pathways that do not involve oxygen. In all the cases, the first step is breakdown of glucose, a 6-carbon molecule, into 3-carbon molecule called pyruvate, is compulsory. यहाँ पर पिछले सेशन में जो हमने फूड को डाइजेस्ट करके डाइजेस्टेड फूड प्रिपेयर किया, वो फूड डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता है हमें. दैट फूड इज़ नॉट प्रोवाइडिंग डायरेक्ट एनर्जी. यस, दैट फूड प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन वैल्यूज डायरेक्टली, बट दैट फूड इज़ नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट एनर्जी. सो टू एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम दैट डाइजेस्टेड फूड, different life process other than a digestion is required, which is a respiration. ये कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सब में ये चीज़ कॉमन है. दिस थिंग इज कॉमन इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म. सम ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर यूजिंग ऑक्सीजन एंड सम लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट यूजिंग ऑक्सीजन. They are do this
respiration process in the absence of oxygen depends on living organism. But one thing is clear, after this digestion process they are converting this glucose into water, carbon dioxide, energy, ethanol, just like this type of compounds only. You will get more information when we will learn in a detail. So basically glucose is breaking down in a pyruvate. ग्लूकोज इज 6 कार्बन मोलिक्यूल. चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म क्यों ना हो, चाहे वो ऑक्सीजन का यूज करता हो या ना करता हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक स्टेप कंपलसरी है. व्हाट इज दैट स्टेप? द स्टेप इज अ ब्रेकिंग डाउन ऑफ 6 कार्बन मोलिक्यूल. यानी कि ग्लूकोज है वो 6 कार्बन मोलिक्यूल है, उसका केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6. वो 3 कार्बन मोलिक्यूल वाले फॉर्मूला में कन्वर्ट हो जाता है जिसका नाम है पाइरूवेट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, इन ऑल द केसेस. दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म. यानी कि अगर आप हिंदी या गुजराती में कहूँ तो भी साइटोप्लाज्म इज अ पार्ट ऑफ सेल विच इज नॉन एज कनाब सूत्र. सो द कन्वर्टेशन of glucose into pyruvate is taking place in a cytoplasm. Further, the pyruvate may be converted into ethanol and carbon dioxide. This process takes place in yeast during fermentation. Since this process takes place in the absence of oxygen, it is called anaerobic respiration. Guys, kindly remember this definition. जो पाइरूवेट है अगर ऑक्सीजन की एब्सेंस में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट होता है तो उसका मतलब ये है कि ये एनारोबिक ऑक्सीजन है, रेस्पिरेशन है. द कन्वर्टेशन ऑफ ग्लूकोज, नॉट ग्लूकोज, पाइरूवेट इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल, the respiration system, the respiration process taking place in the absence of oxygen is called anaerobic respiration. जो respiration process ऑक्सीजन की absence में होती है उसे anaerobic respiration कहते हैं. तो यहाँ पर yeast is a living organism in which pyruvate is a breaking down in ethanol and carbon dioxide in the absence of oxygen. yeast living organism है ना, उसके अंदर ये प्रोसेस किस तरीके से होती है. ये प्रोसेस में ऑक्सीजन की एब्सेंस में, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, विदाउट ऑक्सीजन वो पाइरूवेट को कार्बन डाइऑक्साइड और इथेनॉल में कन्वर्ट कर देता है. सो ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट यूजिंग ऑक्सीजन takes place in a mitochondria. Mitochondria is also part of cell. Mitochondria is also part of cell. This process breaks up the 3 carbon pyruvate molecule to give 3 molecules of carbon dioxide. The other product is water. Since this process takes place in the presence of oxygen, it is called aerobic respiration. The release of energy in this aerobic process is a lot greater than the anaerobic process. Sometimes when there is a lack of oxygen in our muscle cells, another pathway of breakdown of pyruvate is taken. Here the pyruvate is converted into lactic acid, which is also a 3 carbon molecule. This buildup of lactic acid in our muscles during sudden activity cause cramps. तो एक्चुअली ये एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन है क्या? जैसे मैंने आपको एनएरोबिक रेस्पिरेशन का एग्जांपल दिया कि ईस्ट में इन द एब्सेंस ऑफ oxygen, pyruvate is converting into ethanol and carbon dioxide. It is liberating energy. That energy is utilizing for their movements. And this process is also known as a fermentation, जिसे हम आथवन कहते हैं गुजराती या हिंदी में. तो ये फर्मेंटेशन हुआ. अब इफ़ वी टॉक अबाउट पर्टिकुलरली ह्यूमन बॉडी, तो ह्यूमन बॉडी में क्या होता है? रेस्पिरेशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन.
कैसे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है? तो पहले ग्लूकोज विल कन्वर्ट इनटू 3 कार्बन मॉलिक्यूल विच इज नॉन एज अ पाइरूवेट. At that time also it releases some energy, and that pyruvate will convert into carbon dioxide, water and energy in the presence of oxygen. वो जो पाइरूवेट है वो ब्रेक डाउन होता है किसकी प्रेजेंस में? तो के ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. The respiration process taking place in the presence of oxygen is known as एरोबिक रेस्पिरेशन. आई होप ये बातें आपको समझ में आ रही होगी. सिंस दिस प्रोसेस इज अ टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज वाई इट इज नॉन एज एरोबिक रेस्पिरेशन. दूसरी बात, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो एनर्जी रिलीज होती है एन एरोबिक रेस्पिरेशन की कंपैरिजन में बहुत होती है. कभी कभी क्या होता है, आपने काफ़ी बार ये चीज़ देखी होगी. You also felt these things, you also faced these things. Sometimes maybe you have watched it in a TV, on a television, in a cricket. महेंद्र सिंह धोनी के साथ ये चीज़ बार बार होती है. क्यों और क्या होती है ये चीज़? जब भी हमारे बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट हो, मीन्स बहुत ही हार्ड वर्क कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो या कोई भी एक्सरसाइज कर रहे हो या फिर प्ले कर रहे हो, कोई भी गेम खेल रहे हो, तब we required a tremendous amount of energy and we are burning that energy. But at that time if we are not getting sufficient amount of oxygen to breaking down pyruvate, अगर पाइरूवेट को ब्रेक डाउन करने के लिए तब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हमारे बॉडी को नहीं मिलता, तब इन द एब्सेंस या फिर इन द लेक कह सकते हो, एब्सेंस तो नहीं, कि कमी की वजह से, ऑक्सीजन के कमी की वजह से पाइरूवेट किस में कन्वर्ट हो जाता है? पाइरूवेट कन्वर्ट हो जाता है लैक्टिक एसिड में. और उस लैक्टिक एसिड की वजह से क्या होता है? ड्यू टू दैट लैक्टिक एसिड की वजह से क्रैम्प्स यानी कि खिंचाव आता है हमारे बॉडी में. क्या आता है? खिंचाव आता है. और जब भी हमारे बॉडी में खिंचाव आता है तब हम क्या करते हैं? आपको अगर पता हो, जब भी हमारे बॉडी में खिंचाव आता है तब वी आर टेकिंग बाथ और वी आर सेकिंग द पर्टिकुलर पार्ट ऑफ बॉडी विद द हेल्प ऑफ हॉट वाटर बैग. तो ये हॉट वाटर बैग क्या करता है? जो मसल्स में खिंचाव आया है, जो मसल्स स्ट्रेच हो चुके हैं, वो रिलैक्स होते हैं वापस. लैक्टिक एसिड की वजह से जिसमें क्रैम्प्स आए हैं यानी कि खींच गए हैं, वो मसल्स का क्या होगा? वो वापस रिलैक्स हो जाएंगे. आर यू गेटिंग माई पॉइंट गाइज? So we have seen 3 respiration process. First in the absence of oxygen, second in the presence of oxygen, and third in the lack of oxygen. You can see this in the chemical reactions, in the form of chemical reactions in front of you on your screen. These are the respiration reactions. I hope ये समझ में आ रहा होगा. First, glucose 6 carbon molecule in cytoplasm converting into pyruvate, and then this pyruvate 3 carbon molecule and energy. This pyruvate in the absence of oxygen. This respiration process taking place in yeast. This respiration process is converting into ethanol and carbon dioxide and energy. And the second, lack of oxygen in our muscles converting into lactic acid. Do you know the chemical formula of lactic acid, guys? The chemical formula of lactic acid is a CH3 CHOH COOH. And then third, in the presence of oxygen. This process takes place regularly in our body in a part of cell which is known as a mitochondria. In the presence of oxygen में ये जो पाइरूवेट है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में क्या हो जाता है? कन्वर्ट हो जाता है.
The energy released during cellular respiration immediately used to synthesize a molecule called ATP, which is used to fuel all other activities in the cell. In this process, ATP is broken down, giving rise to a fixed amount of energy which can drive the endothermic reactions taking place in the cell. ये चीज़ बहुत ही ज़रूरी है और समझने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो ये एनर्जी रिलीज होती है सेल्यूलर रेस्पिरेशन में, इमीडिएटली यूज्ड हो जाती है। कहाँ पर इमीडिएटली यूज हो जाती है? हमारे बॉडी में। ये एटीपी क्या है और एडीपी, दो नाम है, एक एटीपी और एडीपी। मैं आपको बता रहा हूँ, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट यानी कि एटीपी और एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट यानी कि एडीपी। वी हैव ऑलरेडी एडीपी इन आवर बॉडी। तो ये जो एडीपी है और ये जो एनर्जी जनरेट हुई है, ये जो एनर्जी रेस्पिरेशन प्रोसेस से प्रोड्यूस हुई है, ऐसा नहीं होता कि ये एनर्जी प्रोड्यूस हुई और तुरंत ही यूटिलाइज हो जाएगी। एनर्जी प्रोड्यूस हुई, दिस एनर्जी विल यूटिलाइज। कैसे यूटिलाइज होकर स्टोर हो जाएगी? इन द प्रेजेंस ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस। ये जो एनर्जी है, एनर्जी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस प्रेजेंट इन आवर बॉडी रिएक्टिंग विथ एडीपी। एडीपी मीन्स एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, डाई यानी कि दो, उसमें दो ही फॉस्फेट है। उसके साथ क्या करेंगे? रिएक्शन करके एटीपी बन जाएंगे। यानी कि ये एनर्जी जो रेस्पिरेशन प्रोसेस से मिली है वो सीधा क्या होगी? तो कि एडीपी, ये जो एडीपी है, एडीपी इज द एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, उसके साथ ये फॉस्फोरस और ये एनर्जी तीनों रिएक्शन करके एटीपी बनाएंगे। एटीपी यानी कि क्या? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और जब भी ये स्टोर हो गई अब एनर्जी, ऐसा तो होता नहीं कि हमारे बॉडी को कंटिन्यूसली एक ही अमाउंट की एनर्जी चाहिए। यस, आवर बॉडी रिक्वायर्स कंटिन्यूसली एनर्जी वाइल यू आर स्लीपिंग, वाइल यू आर स्पीकिंग, वाइल यू आर डूइंग एनीथिंग, वी रिक्वायर्स एनर्जी। हमारी लाइफ प्रोसेसेस को रन करने के लिए हमको एनर्जी चाहिए, बट द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज नॉट सेम इन ऑल टाइम। सो दिस एनर्जी इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इनसाइड आवर बॉडी। जब भी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी ना, तब ये एटीपी बन चुका है, वो वापस अगेन किस में कन्वर्ट होगा मालूम है? वापस अगेन एडीपी में कन्वर्ट होगा और फॉस्फोरस में कन्वर्ट होगा, प्लस एनर्जी भी साथ में लिबरेट करेगा। तो ये एनर्जी एक प्रोसेस में, जब भी ये प्रोसेस होती है, प्रोसेस में कितनी है? ये एनर्जी एट ए टाइम 30.5 किलो जूल पर मोल रिलीज्ड होती है। एक बार फिर से समझा रहा हूँ मैं, जो रेस्पिरेशन प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होती है वो एनर्जी तुरंत यूज़ नहीं होती। वो एनर्जी एडीपी के साथ, इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस के साथ रिएक्शन करके एज ए एटीपी स्टोर हो जाती है सेल में। सेल को जब भी रिक्वायरमेंट हो तब वापस ये एटीपी ब्रेक डाउन होता है एडीपी में, फॉस्फेट में और एनर्जी में, तब ये एनर्जी वापस यूटिलाइज होती है। ये एडीपी ऑलरेडी अब बन चुका, अब वापस जो रेस्पिरेशन प्रोसेस से नई एनर्जी मिलेगी, वापस ये एडीपी एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसा कंटिन्यूसली होता रहता है। सो हाउ वी आर स्टोरिंग एनर्जी इनसाइड आवर बॉडी एंड लाइक दिस वी आर यूटिलाइजिंग दिस एनर्जी। सो आई होप ये एडीपी और एटीपी दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अगेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन व्हाट इज द एडीपी। एडीपी मीन्स एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट एंड व्हाट इज द एटीपी? एटीपी मीन्स एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। The chemical formula of ATP is C10. 10 कार्बन मोलिक्यूल है, C10, H16, N5, ऑक्सीजन 13 एंड P3 यानी कि ट्राई। तो दिस वॉज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ, मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ATP। 10 कार्बन है, 16 हाइड्रोजन है, 5 नाइट्रोजन है, 13 ऑक्सीजन है और 3 फॉस्फोरस है, विच इज द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ ATP. Since the aerobic respiration pathway depends on oxygen, aerobic organisms need to ensure that there is a sufficient intake of oxygen. We have seen that plants exchange through the stomata and the large intercellular spaces ensure that all cells are in contact with air. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here.
तो प्लांट्स, ये जो एरोबिक जिसमें भी रेस्पिरेशन होता है, वहाँ पर सरफेस एरिया बहुत ही मेजर करता है, क्योंकि सरफेस एरिया की वजह से ही ये जो अमाउंट है ऑक्सीजन का हो या कार्बन डाइऑक्साइड का, ये ट्रांसफ़र होता है. दे कैन गो into cells or away from them and out into the air. This direction of diffusion depends upon the environmental conditions and requirements of the plant. अगर मैं पर्टिकुलर प्लांट की ही यहाँ पर बात करूँ तो ड्यूरिंग डे प्लांट में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ये एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड एक्सहेलिंग ऑफ ऑक्सीजन, ये इसका अमाउंट कितना होगा, क्या इनहेल होगा क्या एक्सेल होगा, सरकमस्टेंसेस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है. जैसे ड्यूरिंग अ डे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो प्लांट्स आर एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्टोमेटा. वैसे सिर्फ स्टोमेटा से नहीं होता, हर एक पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है. एंड देन लेकिन स्टोमेटा से सबसे ज़्यादा होता है. सो direct diffusion is taking place here, but at night when there is no photosynthesis occurring, CO2 elimination is the major exchange activity going on. During the day CO2 generated during respiration is used up for the photosynthesis, hence there is no CO2 release. जो भी दिन में प्लांट्स में भी रेस्पिरेशन होता है माय डियर फ्रेंड्स, तो जब वो CO2 बाहर प्लांट्स में, रेस्पिरेशन सबके लिए सेम है, सबको रेस्पिरेशन के लिए ऑक्सीजन ही चाहिए, तो वो जो ऑक्सीजन लेते हैं और CO2 बनाते हैं ड्यूरिंग डे, वो CO2 को बाहर छोड़ते नहीं है. क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उनको रिक्वायर्ड है इन द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, दे रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज वाई दे आर नॉट रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड. बट ड्यूरिंग द नाइट, एट द नाइट they are not doing, photosynthesis process is not occurring. photosynthesis process रात को नहीं होता है. so at that time the exchange of carbon dioxide or elimination of carbon dioxide is a headache. ये सबसे बड़ा सर का दुखावा है आप कह सकते हो, क्योंकि रात को कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ डालेंगे, वो यूज़ तो होता नहीं है, तो उनको वो बाहर ही निकालना पड़ेगा. क्या करना पड़ेगा, बाहर ही निकालना पड़ेगा. इंस्टीड ऑफ ऑक्सीजन रिलीज इज द मेजर इवेंट एट दिस टाइम. दैट इज वाई कभी आपने सुना होगा कि पेड़ों के नीचे नहीं बैठते रात को, या पेड़ों के नीचे रात को नहीं सोते, ऐसा सुना होगा. वहाँ पे पेड़ों के ऊपर भूत नहीं होते, लेकिन रात को कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करते हैं इसीलिए. सो एनिमल्स हैव इवॉल्व्ड डिफरेंट ऑर्गन्स for uptake of oxygen from the environment and for the getting rid of the carbon dioxide produced. अलग अलग एनिमल्स के स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं. अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर दे आर एब्जॉर्बिंग ऑक्सीजन. जैसे अगर हमारी बात करूँ तो हमारे पास नोस्ट्रिल्स है, नाक है हमारे पास, नाक में 2 पोर्स है जिसे नोस्ट्रिल्स कहते हैं. Terrestrial animals can breathe the oxygen in atmosphere, but animals that live in water need to use the dissolved oxygen in water. जैसे टेरेस्ट्रियल एनिमल्स है हम जैसे, वो तो डायरेक्ट एटमॉस्फेयर में से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं. बट व्हाट अबाउट द एनिमल्स विच आर इन वाटर, जो वाटर के अंदर एनिमल्स है वो किस तरीके से मैनेज करते हैं, तो वो वाटर के अंदर जो डिजोल्व्ड ऑक्सीजन है वो लेते हैं. वैसे जो ऑक्सीजन का डिजोल्यूशन है इन वाटर विच इज़ वेरी लेस, अगर मैं कहूँ इसको नंबर में, तो अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 6 to 5 grams ऑक्सीजन कैन डिजोल्व इन 1000 लीटर ऑफ वाटर. यू कैन थिंक बहुत ही कम डिजोल्यूशन है, तो इतने कम डिजोल्यूशन में से भी वो ले लेते हैं. Since the amount of dissolved oxygen is fairly low compared to the amount of oxygen in the air, एयर में तो परसेंटेज वाइज अगर आप देखें तो 20.946% एयर है. द रेट ऑफ ब्रीदिंग इन एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स इज मच फास्टर देन दैट सीन इन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स. उसकी वजह से ही जो हमारा ब्रीदिंग रेट है उससे जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनका ब्रीदिंग रेट बहुत ही ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको ऑक्सीजन कम अमाउंट में मिलता है. फिशेस टेक in water through their mouth and force it to pass the gills where the dissolved oxygen is taken up by blood. दो फिशिश में क्या है, गिल्स है.
गिल्स से वो ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाती है। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज द ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर फॉर द रेस्पिरेशन. दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब्ड बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स. All these organs have a structure that increases the surface area which is in contact with oxygen-rich atmosphere. Since the exchange of oxygen and carbon dioxide has to take place across this surface is a very fine and delicate. In order to protect this surface, it is usually placed within the body, so there have to be passage that will take air to this area. Terrestrial जो organisms है उनके लिए ये जो ऑर्गन्स है इनका स्ट्रक्चर और सरफेस एरिया डायरेक्ट कांटेक्ट के एटमॉस्फेयर में होना चाहिए. अगर कांटेक्ट के एटमॉस्फेयर में होगा तो ही वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर पाएंगे. वन मोर थिंग हियर कि एटमॉस्फेयर में प्योर ऑक्सीजन नहीं होता, वो एयर होती है. तो एयर में डस्ट पार्टिकल्स, ये इम्प्योरिटीज़ भी हो सकती है. तो वही इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए. इसीलिए हमारी नोस्ट्रिल्स में क्या होता है, हेयर होता है. हियर इन आवर नोस्ट्रिल्स हेयर्स आर एक्ट एज ए फिल्टर. आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होगी. In human beings, air is taken into the body through the nostrils. The air passing through the nostrils is filtered by the fine hairs that line the passage. The passage is also lined with mucus which helps in this process. From here, the air passes through the throat and into the lungs. Rings of cartilage are present in the throat. This ensures that the air passage does not collapse. So इसके बारे में we will study. This is the mechanism of breathing. We will study about this mechanism in our later part, in our next session. I hope आपको ये पूरा respiration, chemical respiration process समझ में आया होगा. Aerobic and anaerobic. This topic is also important according to exam point of view. Thank you students.